انہوں نے خالی خالی نظروں سے حمیری کی طرف دیکھا۔ فرحانہ بیگم ان دونوں کی تلاش میں وہیں چلی آئی تھی۔ کاش کہ میں اس سے ایک بار مل سکوں، صرف ایک بار۔ کچن ٹیبل کے گرد کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتی وہ حسرت زدہ لہجے میں بولی، ایک بار ہی کیوں؟ اللہ وہ وقت قریب لائے جب وہ تم سے ملنے بار بار آئے۔ لینے دو آج میسم کو، اب تو کافی وقت بیت چکا ہے۔ میں کہتی ہوں اس سے کہ وہ اس کا پتہ لگوانے کی کوشش کرے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرحانہ بیگم نے نرم لہجے میں انہیں تسلی دی۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، رابی اب بالغ ہے اور اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اور جتنا میں اسے جانتی ہوں آپ کے ایک بار ہاتھ بڑھانے پر وہ فوراً آپ کی طرف بڑھ کے آئے گی۔ کون بڑھ کے آئے گی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میسم کی سنجیدہ آواز پر وہ تینوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ حورب کی بات کر رہی تھی میں، ماہرہ اسے بہت یاد کرتی اور پھر کہتے ہوئے پل بھر کو رکی، جس بیٹی کی خاطر اس بدقسمت نے اتنی بڑی قربانی تھی وہ ہی نہ رہی تو بس میں چاہتی ہوں کہ تم پتہ لگواؤ کہ حورب اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ فرحانہ بیگم نے کچھ تکلیف دہ آواز میں اپنی بات مکمل کی، اور آن کے ذکر پر ماہرہ بیگم سمیت سبھی اداس سے ہو گئے۔ بلا شبہ آن سلطان ان سب کے لیے ایک ایسا ہی خسارہ تھی کہ جس کی بھرپائی شاید کسی صورت ممکن نہیں تھی۔ میسم اس بات میں سر ہلاتا کچن کی دہلیز سے ہی پلٹ گیا۔ زوہا جاؤ بیٹا، فرحانہ بیگم نے آنکھ کے اشارے سے اسے کہا، جسے سمجھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میسم کے پیچھے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ صوفے پر تھکے ہارے انداز میں بیٹھا تھا، ہاتھ ڈھیلے سے انداز میں صوفے کی پشت پر ٹکائے ہوئے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی پیشانی چھوتے ہوئے حمیری نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، حمیری پر ایک دھیمی آنچ دیتی نگاہ ڈال کر وہ جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے میسم نے آہستگی سے پوچھا۔ حمیری نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کب تک ہم سب آن کے ذکر پر یوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہیں گے میسم؟ اس کے مقابل آتے حمیری نے آہستگی سے پوچھا۔ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کرتے میسم کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے، پھر یوں ہی وہ مسکرایا۔ تب تک جب تک تم بیٹی کی صورت میں ہم سب کو ہماری آن واپس نہیں کر دیتی ہو۔ وہ نارملی گویا ہوا تھا۔ اس کی بات کی گہرائی سمجھتے حمیری کے گال پل بھر میں سرخ ہوئے تھے۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، بات کو گھما دیا۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے جھجکتے ہوئے بولی، یعنی آپ کی تمنا آن دل میں ہوتی دھڑکنوں کی پکڑ دھکڑ سے نبرد آزما ہوتی۔ حمیری نے شرم سے بوجھل ہوتی پلکیں اٹھا کر اس سے سوال پوچھا۔ میسم اس کی آنکھوں میں پنپتے خدشات بخوبی سمجھتا تھا۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہماری بیٹی۔ اتنے بڑے اور واضح انداز میں حمیری پر اس کی اہمیت واضح کی تھی۔ آج اس نے پہلی بار آن کا نادیدہ وجود کی نفی کی تھی۔ حمیری کی آنکھیں اس کے اس صنائط پر بھر آ گئی، لب کپ کپانے لگے۔ اب کیا خلیش ہے؟ کون سی کسک ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے میسم نے کہا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، جانے کیوں، لیکن دکھ بھی ہے۔ یہ آن کی جگہ تھی، اس کا مقام تھا، یہاں ہر طرف اس کو ہونا تھا، لیکن بولتے بولتے وہ رکی، آنسو لڑھک کر گالوں پر پھسل آئے تھے۔ آن ہوتی یا نہ ہوتی تمہیں یہیں ہونا تھا زوہا، تم وہیں ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ آن کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہی ہے، اور اب آن کہیں نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آخری بار ہے جب میسم مظہر کا دل آن کے نام پر دھڑکا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ الفاظ بے معنی نہیں ہیں جو میسم نے اپنے لبوں سے ادا کیے تھے۔ جس رات تمہیں اپنایا تھا نا بیوی، اسی رات کی تاریکی میں آن کی محبت اپنے دل کے ایک تاریک گوشے میں دفن کر دی تھی۔ مجھے انکار نہیں ہے کہ وہ گوشہ میرے مرتے دم تک اس محبت سے روشن رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے تمہاری یا موجودگی پر کوئی افسوس ہے۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مقام، یہ حصار، یہ دل، یہ پورے کا پورا میسم مظہر صرف تمہارا ہے، صرف اور صرف تمہارا ہے زوہا۔ اور تمہاری یہاں موجودگی کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دھیمے لہجے میں بے حد میٹھا بولتا وہ آخر میں مسکرایا تھا۔ اس قدر خوبصورت دل نشیں انداز محبت تھا کہ اسے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میری نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا؟ وہ حیران ہوا۔ وہ نا، آج آپ کی فیوریٹ اچاری آلوؤں میں مرچیں ذرا تیز ہو گئی ہیں مجھ سے۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے جتنی بے چارگی سے کہا تھا، اتنا ہی میسم کو اس کی عقل پر افسوس ہوا تھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا اور بدلے میں کون سا دکھڑا لے کر بیٹھ گئی تھی؟ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نفی میں سر ہلاتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز آج کھا لیجیے گا، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اب کے بار اس کی بے وقوفی پر میسم نے مسکراہٹ کو لبوں کو چھوا تھا۔ وہ رکا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ اچھا ٹھیک ہے۔
सीधी शफाफ सड़क पर 120 की रफ्तार से फर्राटे भरती गाड़ी आज अपने पीछे गार्ड्स की पाबंदी से महरूम थी। वजह वो थानेदार नहीं थी। उसे अपने पीछे गार्ड्स के नाम पर कार्टून्स की मौजूदगी जहर लगती थी। हुरब की पुरसोच निगाहें आसमान की वसतों में जाने क्या तलाश कर रही थी। महदस की बेलगाम निगाहें उसके चेहरे का दीदार कर रही थी। गाड़ी एक झटके से सी लाइफ की पुरशिकवा इमारत के सामने रुकी थी। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इस इमारत पर नज़र डाली जिसके दोनों जानिब इमारत के गिर्द बाउंड्री थी। महदस की जानिब का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे का सहारा लेता वो बाहर निकल आया। हुरब ने पलट कर इसकी जानिब देखा और हौले से मुस्कुराई। फिर जल्दी से इसकी जानिब आई और अपने दोनों हाथ इसकी जानिब बढ़ाए थे। मामूल के मुताबिक महदस ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। वो सुर्ख ईंटों से बनी कदीम तर्ज की ज़मीन पर कदम बा कदम इसके साथ चलने लगी। वो बेध्यानी में महदस का हाथ छोड़ देती तो वो लड़खड़ा सा जाता। हुरब इसकी शैतानियाँ खूब समझ रही थी। वो जानती थी कि मुकम्मल महारत से न सही, लेकिन वो इस काबिल हो गया था कि अपने सहारे चल लेता। लेकिन वही इसकी शरारतें। हुरब को ज़िज करना मकसूद था। आप ना बाज आ जाएं। मैंने क्या किया है? वो मासूम बना था। आपको तो जैसे पता ही नहीं। वो तपे तपे लहजे में बोली थी। वो अपनी सुरमई आंखों में मोहब्बतों का जहान आबाद किए इसी को देख रहा था। हुरब ने अपने गुलाबी लब भींचे और जल्दी से इसके सीने पर अपने हाथ रखते हुए कदरे हल्के दबाव से इसे पीछे की जानिब धकेला। वो जो इसकी बादामी आंखों के शहर में खो सा गया था, इस अचानक हमले से ज़रा सा लड़खड़ाया, फिर संभल गया। इसके कदमों की ज़मीन पर मजबूती देखकर हुरब ने अपनी भवें उचकाईं। जैसे आंख से इसे नीचे देखने का इशारा किया था। पहले तो वो समझा ही नहीं। जब समझा तो बेचारा समूह बनाते हुए फ़ौरन लड़खड़ाया। मुझे आपको थाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके इन ड्रामों की वजह से किसी दिन आपको थामते थामते मैं ज़रूर गिर जाऊंगी। वो इसके करीब होकर इसे थाम कर घूरते हुए चबा चबा कर बोली। महदस दिलकशी से मुस्कुराया, फिर सीधा हुआ। महदस ने आहिस्तगी से इसके गिर्द अपना बाजू फैला लिया। अब चलें यहाँ से। आइसक्रीम खाओगी? इसके साथ चलते हुए महदस ने नर्म लहजे में इस्तफसार किया। हुरब ने नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा, फिर सर इस बात में हिला दिया। थोड़ी देर बाद सी लाइफ की राहदारियाँ इन दोनों के कहकहों से चहक रही थी। हाथ में पकड़ी कॉर्नेटो वो खा कम और एक दूसरे को लगा ज़्यादा रहे थे। हुरब मुस्काती नाम आँखों से महदस इब्राहिम का बिना किसी सहारे के कदरे लड़खड़ा कर चलना देख रही थी। जहाँ वो डगमगाता वो इसे थाम लेती। इन दोनों का मिसाली कपल देखकर वहाँ कितनी नज़रों में सत्ताईश उभरी थी। अगली सुबह इन दोनों को एयरपोर्ट के लिए रवाना होना था। वो करीबन 3 माह बाद पाकिस्तान वापस जा रहे थे। अपने ऑफिस में बैठा पुरसोच निगाहों से लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। समात एक कॉल बेल सुनने की मुंतज़िर थी। उनके ग्रुप का काशिफ एसपी का राइट होने के अलावा कुछ सीक्रेट ड्यूटीज़ भी पूरी करता था। हारिस के ज़रिए इसने काशिफ से हारिस के वलीमा वाले दिन के हवाले से मुनासिब अल्फाज में माजरत कर ली थी और अब इसे काशिफ ही की कॉल का इंतज़ार था। काफ़ी देर से इसके कॉल का इंतज़ार कर रहा था। मोबाइल से ध्यान हटाकर इसने तैयार शुदा प्रेजेंटेशन पर एक नज़र दौड़ाई थी। फिर टेबल पर रखा चाय का मग उठाकर घोंट घोंट चाय हलक में उतारने लगा। मज़ीद कुछ वक्त सरका था जब इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। काशिफ का नंबर देखकर इसने एक पुरसकून सांस खारिज की और कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। कुछ पता चला? जो पता चला है वो सुनकर तुम्हें कुछ ख़ास खुशी नहीं होगी। मतलब ये कि इस लड़की की लास्ट लोकेशन एबटाबाद है। इसके बाद वो वहाँ से ख़ुद कहीं चली गई या इसे भेज दिया गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। काशिफ की आवाज़ भरपूर संजीदगी लिए हुए थी। दूसरे हाथ में पकड़ा मग इसने टेबल पर रख दिया। और लास्ट लोकेशन कितने अरसे पहले की है? यही कोई 7 या 8 माह पहले की। फौरी जवाब आया था। अच्छा, यानी 8 माह पहले वो एबटाबाद में थी। मैसम ने एक बार फिर से तस्दीक करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, काशिफ का जवाब हस्बे तवक्को था। क्या मज़ीद कुछ मालूम हो सकता है? गुज़रे हुए कल की बाबत तो सब कुछ मालूम हो सकता है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है और किस जगह किस हाल में है, ये मालूम करना करीबन नामुमकिन है। हाँ, एक सूरत है। बेतासुर लहजे में बोलता काशिफ एक पल को रुका था। कौन सी? इसकी फैमिली से रब्ता करो, पूछो कि क्या माजरा है। अगर उसके घर वालों ने ही इसे गायब कर दिया है तो फिर तो समझो माजरा ही ख़त्म। काशिफ ने मुख्तसर लफ्ज़ों में बात ही ख़त्म कर दी, जिसे सुनकर मैसम एक पल को सुन सा रह गया। अगर हुरब को कुछ हो गया हुआ तो क्या जवाब देगा माहिरा बेगम को? क्या वो आन के बाद हुरब को भी? इससे आगे वो सोच नहीं सका था। ठीक है यार, थैंक्स। इसकी फैमिली से ही रब्ता करना पड़ेगा।
मैसम ने कुछ सोचते हुए कहा था, मुझे नहीं लगता कि इसकी फैमिली तुम्हें कुछ बताएगी। यही तो मसला है, बेचैनी से कहता अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। मुझे 1 हफ्ते का वक्त और दे दो, इसके बाद शायद मैं कोई पक्की खबर ला सकूं। संजीदगी से बोलते काशिफ ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। वो सुकून का सांस लेता इससे मज़ीद 1-2 बातें करने लगा, फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर काली काट दी। मोबाइल की स्क्रीन को घोलते मैसम की आंखों में गहरी सोच की परछाइयाँ थीं। वो लॉन में बैठे शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब लंबे लंबे डग भरता उनका एक ख़ास आदमी वहाँ आया था। सलाम सर। अपनी लंबी लंबी मूँछों को ताव देता वो तंदही से बोला, बैठो ज़ुबैर। चाय की चुस्की भरते हुए मलिक सुल्तान ने धीमी आवाज़ में कहा। वो अपनी सुरमा भरी आंखों को उनके चेहरे पर टिकाते हुए उनके मुकाबिल बैठ गया। तुम्हें 2 गाड़ियों का अरेंज करना है, एक की रफ्तार दिखानी है और दूसरे में असलहा रखना है, वार ऐसा हो कि वो बचने ना पाए। उन्होंने इसे कोड वर्ड्स में समझाया था। मुकाबिल ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। उनकी वापसी? ज़ुबैर ने पूछा। वो आज शाम तक हो जाएगी, लेकिन सवाल हमारा शिकार है। वो तुम्हें ठीक 5 दिन बाद, और वो इसे बाकायदा लोकेशन बता रहे थे। टाइमिंग अभी नहीं पता, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। आंखों में भड़कते इंतकाम के जज्बात लिए सुल्तान साहब बेतासुर लहजे में बोले। ज़ुबैर नामी शख्स ने एक नज़र उठाकर सामने मौजूद इमारत पर डाली, जिसकी सजावट मान पड़ चुकी थी। अब तुम जा सकते हो। इसे इर्द गिर्द का जायज़ा लेते देखकर सुल्तान साहब ने संजीदगी से कहा, चाय का नहीं पूछेंगे? कमीनगी से कहते हुए इसने इनके सामने रखा चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। उसकी इस हरकत पर नागवारी से पहलू बदल कर रह गए। आप हक देते नहीं हैं, फिर छीनना तो पड़ता है ना जनाब। वो ढिठाई से हंसा। इसकी निगाह गेट से अंदर आती गाड़ी पर पड़ी। सुल्तान साहब भी उसी तरफ मुतवज्जा हुए थे। लगारी का ड्राइवर उस गाड़ी से बरामद हुआ था जिसने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोला। वो समझ गए कि किरण आई है। एक सरशार सी मुस्कुराहट ने उनके लबों को छुआ था, जबकि ज़ुबैर ने अपनी सुरमे भरी आंखें छोटी करके गहरे गले का टॉप पहने टाइट जीन्स के नीचे ऊंची हिल में एक अदा से चलती इस हसीना को देखा। इसके लबों पर एक खबीस मुस्कुराहट आई थी। तुम अब यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। इसे किरण को तकता पाकर वो धीमी आवाज़ में गुर्राए। वो एक गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाता उठ खड़ा हुआ, फिर किरण पर एक अलविदाई नज़र डालता वहाँ से चला गया। उनके करीब आती किरण ने कुछ नापसंदीदा निगाहों से वहाँ से जाते शख्स को देखा। ये पेंडू कौन था? उनके सामने चेयर पर बैठते हुए नाक चढ़ाकर बोली, ओह, फैक्ट्री का मुलाजिम है, तुम दफ़ा करो इसको। उन्होंने सर झटकते हुए कहा, ये बताओ तुम्हारे प्लान की कामयाबी के चांसेस कितने % है? उन्होंने मज़ीद पूछा था। ऑफ कोर्स 100%, उसने खुश होकर जवाब दिया। ठीक है किरण, मैं पहली मर्तबा तुम पर एतबार कर रहा हूँ। कोशिश करना कि यह आखिरी मर्तबा ना हो। अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी को घुमाते हुए उन्होंने संजीदगी से कहा, और डैड आप फिक्र नहीं करें, ठीक 5 दिन बाद वो यहाँ आपके सामने इस घर में होगी। अपने बालों में हाथ चलाती मुकम्मल एतमाद से बोली। इसकी बात पर वो मुतमईन से होकर मुस्कुराए। और सुनाओ, लगारी कैसा है? बात का रुख बदलते उन्होंने किरण की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवाई, जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही लगारी से हुई थी। इसने कैसा होना है, नहायत मेहरबान, दीवाना है मेरा। वो चहकी, जबकि इसकी बातों से बेनियाज वो इसे शुरू करवा कर अपने प्लान की बाबत सोच रहे थे। वो किरण और असीद के प्लान से बाखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन अपने अपने मफाद में गुम वो दोनों इस हकीकी प्लान से कतई ना वाकिफ़ थे जो सिराज सुल्तान ने बनाया था। मलिक सुल्तान के लबों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट रेंग रही थी। लाहौर एयरपोर्ट पर एक गहमा गहमी का समा था। मुसाफिर अपने साथ सूटकेस घसीटते यहाँ से वहाँ आ जा रहे थे। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ ओहदे की नशिस्तों पर विराजमान अमला तनदही से अपने काम में मसरूफ़ था। वहीं खड़े सैयद नूर आलम साहब की बेताबी में इजाफा हुआ था। शफीक चेहरे पर खुशी के रंग फूट पड़े। मुनीर नियाजी के चेहरे पर भी रौनक सी थी, जबकि उनके पीछे खड़े 4 गार्ड हाथ बांधे मुकम्मल मुस्तैदी से खड़े थे। नूर आलम साहब की निगाहें बेताबाना हर मुसाफिर की जानिब उठ रही थीं। तभी उनकी निगाह एक हाथ से होरब का हाथ थामे दूसरे से हैंड कैरी घसीटते बाहर आते महदस पर पड़ी। वजीह चेहरे पर पुरकशिश मुस्कुराहट सजाए वो होरब के कान में कुछ सरगोशी कर रहा था। होरब के लब भी मुस्काए थे। नज़र मिलने पर सैयद नूर आलम साहब ने अपना हाथ हिलाया था। बदले में वो चहक उठा। वो इस पल इस हजूम में अलग ही दिख रहा था। वह कदरे ठहर ठहर कर छोटे कदम उठाता उनके मुकाबिल आकर रुका था। इसे आज मुकम्मल धूप में देखकर नूर आलम साहब की बूढ़ी आंखों में नमी चमकने लगी।
इस सक्सेसफुल सफ़र के लिए मुबारकबाद कबूल करो सैयदजादे। उसकी पीठ जोश से थपकते हुए खुशी से लबरेज आवाज़ में बोले थे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, धीमी मसरूर आवाज़ में कहते हुए वो इनसे अलग हुआ। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल दुख से भर गया। वो जानता था ये आंसू खुशी के, इस खुशी के जिससे वो इन्हें पिछले 5 सालों से महरूम रखे हुए था। वो इनसे अलग हुआ तो हुरब ने उनके सामने सर झुका दिया। उन्होंने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा। मेहदस अब मुनीर नियाजी से मुबारकबाद वसूल कर रहा था। हुरब और नूर आलम साहब एक साथ ही चल रहे थे। अपनी बदतमीज़ियों के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, हुरब ने धीमी आवाज़ में इन्हें मुखातिब किया। तो वो जो खुद से आगे चलते मेहदस की जानिब देख रहे थे चौंक गए, फिर मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। बेटियों की छोटी मोटी ख़ताएँ नज़रअंदाज करने के काबिल होती हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हुरब ने मशगूल नज़रों से इनकी जानिब देखा। वो मुतमईन से मुस्कुरा रहे थे। इनकी निगाहें बार बार मेहदस का तंदुरुस्त वजूद देख रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि इस मंथ के लास्ट वीक में तुम्हारा वलीमा कर दूँ। रास्ते में उन्होंने यूं ही मेहदस को छेड़ा था। उनके बात पर मेहदस ने भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए हुरब की तरफ देखा। नेक काम में देरी कैसी, मंथ को छोड़े, मेरी तरफ से आप चाहें इसी वीकेंड पर अरेंज करवा लें। अपनी मुस्कुराहट दबाते भरपूर संजीदगी से बोला। एक निगाह ख़ास अपने पहलू में बैठी हुरब पर डाली, जिसने एहतजाजन सर उठाया था। इतनी जल्दी किस बात की है? ये प्लानिंग आराम से भी तो की जा सकती है। मुनीर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था हुरब की कमज़ोर आवाज़ पर अपनी हंसी ज़ब्त कर गया। मोहतरमा, हमारी निगाह को 7 से 8 माह बीत चुके हैं, अभी भी आपको ये जल्दी लग रहा है? चलो इस बारे में एक बार और सोच लेते हैं। उन्होंने हुरब की तसल्ली करवा दी थी। इनकी बात सुनकर वो इत्मीनान से मुस्कुराई, जबकि मेहदस ने कुछ खफगी से इसे घूरा। इसकी शक्ल देखकर हुरब को हंसी आने लगी। आराम से सोचेंगे ना, आहिस्तगी से बोलती हुरब ने इसे चिढ़ाया था। तो मैं तुम्हें देख ही लूँगा, अभी भी देख ही रहे हैं, कहते हुरब ने भवें उचकाई। अंदाज दिल जलाने वाला था। काश के दादा अब्बू इस वक्त हमारे साथ ना होते। फ्रंट सीट पर बैठे नूर आलम साहब की मौजूदगी का ख्याल करके वो बुड़बुड़ाया। इसे किलसते देखकर हुरब ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी का गला घोंटा। यूँ तपते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हुरब की मुस्काती आवाज़ सरगोशी से बुलंद नहीं थी, लेकिन इसकी बात पर मेहदस की उनाबी होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। इसने बुरा मानने के बजाय अपने दिल पर हाथ रख लिया। नवाजिश। इसके लबों ने जुम्बिश की तो हुरब ने गड़बड़ा कर नज़रों का रुख बदल लिया। खुश फहम हंसी रोकते हुए बुड़बुड़ाई थी। इस पल इसका छोटा सा दिल मेहदस की संगत में मसरूर सा धड़क रहा था, जिसकी धड़कनों का रिदम वो बखूबी महसूस कर सकती थी। वो जैसे ही कमरे में आया, इसकी पहली नज़र बेड पर औंधे मुँह लेटी हुमैरी पर पड़ी थी। इसे इस टाइम यूँ लेटे देखकर वो तशवीश ज़्यादा सा इसकी जानिब आया था। जोहा, तबीयत ठीक है? इसके करीब बैठते मैसम ने नरमी से पूछा। जोहा, क्या मसला है यार, बोलती क्यों नहीं हो? किसी ने कुछ कहा है? इसे बाजुओं से थामते हुए मैसम ने झंझोर डाला तो पलके झपकाती वो चौंक उठी, जैसे किसी ख्वाब के असर से बाहर आई थी। अगले ही पल वो अपना ज़ब्त गंवाती इसके शाने से लगती शिद्दत से रो पड़ी। क्या हुआ है? मिदहत की कॉल आई थी, अम्मी नहीं रही। हिचकियों के दरमियान बामुश्किल बोलती वो अपने साथ साथ इसे भी शदीद अजियत में मुब्तला कर गई थी। अपनों को खोने का दर्द इससे बेहतर कौन जान सकता था। वो हुमैरी की बहन थी मिधा। 3 साल पहले जैसे तैसे करके इसका मिधा से रब्ता हो गया था, जिसने इसे इस्लाम कबूल कर लेने पर खुले दिल से मुबारकबाद दी थी। इस तमाम अरसे में हुमैरी ने अपनी अम्मी से बात करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो इसकी आवाज़ सुनने की भी रवादार नहीं थी। उनकी नज़र में हुमैरी ने अपना मजहब छोड़कर कुफर का बोझ सर पर उठाया था। इसी में अल्लाह की मंजूरी थी, सब्र से काम लो। इसका सर सहलाते हुए मैसम ने थकन ज़दा लहजे में कहा। हुमैरी का पूरा वजूद इस पल हचकोले खा रहा था और मैसम मजहर के लिए वो पल कर्बनाक थे, जिनमें इसके पास हुमैरी को तसल्ली देने के लिए चंद जुमले भी नहीं थे। मुझे अम्मी के पास जाना है, सिर्फ एक बार उनसे मिलवा दें, उनका आखिरी दीदार करवा दें प्लीज़ मैसम। मैसम की जानिब आस भरी नज़रों से देखती भर्राई हुई आवाज़ में गिड़गिड़ाई थी। उसने साइड से पानी की बोतल उठा ली। अच्छा, पहले पानी पियो, फिर चलते हैं, इसने नरमी से कहा। हुमैरी ने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो इस पल कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। नहीं, मुझे नहीं पीना, अम्मी के पास जाना है। इसका बोतल वाला हाथ पीछे करते हुए वो सिसकी। आंखों से आंसू मुसलसल टूट रहे थे। कहा है ना, चलते हैं, पहले ये पी लो प्लीज़। इसे प्यार से पुचकारते हुए मैसम ने दोबारा अपनी कोशिश दोहराई थी। हुमैरी ने बामुश्किल 2 घूंट भर लिए। मैसम ने नहायत नरमी से इसके चेहरे के गिर्द बिखरे बाल समेटे थे।
इसका उजड़ा बिखरा हुलिया मैसम के सीने से दिल नोच रहा था। वो पानी पी कर गहरे गहरे सांस लेते अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। कब हुई ये डेथ? सुबह। अम्मी को बताया तुमने? उसके कांपते हाथ अपने मजबूत हाथों में लेते हुए इसने पूछा। नफ़ी में उसने सर हिलाया। मेधा की कॉल अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई है। मम्मा तो माहिरा आंटी के साथ टेलर के पास गई हैं। वो घर में नहीं है तो कैसे बताती? इसने बड़ी मुश्किल से इसे तफसील बताई थी। हाँ, और अगर मैं घर ना आता बस तुम यूं ही रो रो कर ख़ुद को ख़त्म ही कर लेती। क्यों ना आते आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अजियत सहूँ और आप बेखबर रहें? ये तो सच है कि मैं बेखबर नहीं रह सकता। इसकी गुलाबी आंखों में झांकते हुए मैसम ने पूरी यकीन अंदाज में कहा, फिर इसके हाथ तसल्ली देने वाले अंदाज में दबाकर छोड़ दिए। चलो उठो और ख़ुद को थोड़ा सा फ्रेश कर लो। मैं पता करता हूँ, अगर लाहौर के लिए फ़ौरी तौर पर कोई फ़्लाइट मिलती है तो मैं टिकट बुक करवा लेता हूँ, वरना। वो जेब से मोबाइल निकाल कर मसरूफ़ से अंदाज में बोल रहा था जब हुमैरी ने उसकी बात उचक ली। वरना क्या? वरना क्या भाई? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें गाड़ी में लेकर जाऊंगा यार। चलो उठो। शाबाश। इसे हाथ से पकड़कर उठाते हुए ख़ुद भी बेड से उतर गया। फिर मैसम ने इसे वॉशरूम के दरवाजे तक सहारा दिया था। दरवाज़ा बंद होने पर वो पलटा और बिलावल को कॉल मिलाते हुए कमरे से बाहर निकल आया। नीचे वाले पोर्शन से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन दोनों ख़वातीन वापस आ चुकी थीं। वह हकीकतन इस वक्त अपने घर आने पर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। यह सोच ही तकलीफ़ दे थी कि अगर वो बर वक्त घर ना आता तो मेरी तन्हाई इस दुख से लड़ती रहती। अब उठ भी जाओ हुरब, नमाज कज़ा हो जाएगी यार। हौले से इसका गाल थपथपाते हुए मेहदस ने इसे जगाने की एक आखिरी कोशिश की थी, जैसे वो पिछले 15 मिनट से वक्फे से इसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वो तो गधे घोड़े सब बेचकर सो रही थी। नमाज की बात सुनकर इसने कसलमंदी से अंगड़ाई ली। इसकी बेफिक्री नींद पर वो ना चाहते भी मुस्कुरा दिया। हुरब ने पट से आंखें खोली। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पलके झपकाते हुए इसने बोझल लबो लहजे में दरियाफ्त किया। इसलिए क्योंकि अगर मियाँ बीवी को मुस्कुरा कर देखे तो सवाब मिलता है। तुम चाहो तो तुम भी ये सवाब कमा सकती हो। अपने मुस्कुराने की वजह छुपाते हुए इसने बात को इसी शहद में लपेटा था जिसमें वो अक्सर लपेटा करती थी। मेरे हरबे मुझ पर ही आजमाए जा रहे हैं। इसने मुस्कुराते मेहदस पर चोट की जो गुनाह सवाब को दरमियान में लेकर आया था। वो उठकर बैठी तो हंसते इसके पास से उठ गया। नेक बीवियों की सोहबत का असर उनके शौहरों पर हो ही जाता है। अगर मुझ पर हो गया तो क्या बुरा है? इसे दो बदो जवाब देते हुए वो अपने लिए मखसूस नमाज चेयर की जानिब बढ़ने के बजाय फ़र्श पर जा नमाज बिछाने लगा। यूके में तो वो पाकिस्तान आने तक सोफ़े पर ही बैठकर नमाज पढ़ता रहा था। अपने बाल समेटती हुरब की नज़र इस पर पड़ी तो ठिठक कर अपनी जगह रुक गई। मेहदस। इसके पुकारने पर मेहदस ने अपना झुका सर उठाया। हाँ, इसकी आंखों में सवाल था। आप मैनेज कर लेंगे ना? वो इसके लिए फ़िक्रमंद हुई थी। इसके बाद पर वो धीमेपन से मुस्कुराया। शायद हाँ, इसने नरमी से जवाब दिया। वो मुतमईन नहीं हुई थी क्योंकि जानती थी अभी इसकी चाल में वो मजबूती नहीं जो शायद कभी रही होगी। फिर भी इसे और ख़ुद को हौसला देने के लिए वो बोल पड़ी। इंशाअल्लाह। हुरब की कमज़ोर पड़ती आवाज़ में यकीन था। वो शख्स अपने अमाल और किरदार से इसे बेबस कर चुका था। असीद अकरमा के मामले में वो कभी बेबस नहीं हुई थी, लेकिन मेहदस इब्राहिम ने इसे बारहा बेबस किया था। इसकी तमाम तर असलियत जान लेने के बावजूद वो चाह कर भी इसे नफ़रत नहीं कर पाती थी। आन के लिए इसके दिल में मौजूद नर्म जज्बा इसे बारहा शर्मिंदा करता था। फिर वो मेहदस की तरफ से ख़ुद को खुद ही सफाइयाँ देती रहती। अगर वो मेहदस को माफ़ कर देती तो शायद इसके दिल में कहीं ना कहीं जो बेकली सी थी वो भी ख़त्म हो जाती। उसे अपनी माँ का ख्याल आया था। वो वज़ू करके वापस आई और खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ते मेहदस पर एक निगाह डालकर ख़ुद भी नमाज की नीयत बांध ली। इसने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए। वो दुआ मांगकर फारिग हुई तो मेहदस को हनूज़ दुआ मांगते ही पाया। इसका चेहरा इस पल ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। बंद आँखों की स्याह पलकों पर नमी सी थी, वो नमी जो नमाज फ़जर में लाजमी इसकी पलकों पर चमकती थी। अपने घुटने पर कोहनी टिका कर ठोड़ी तले मुट्ठी जमा कर इसे नर्म निगाहों से देखती रही। हुरब को पता ही नहीं चला, लेकिन इसके लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए मेहदस ने आंखें खोली। ऐसे क्यों देख रही हो? इसकी आवाज़ भारीपन लिए हुए थी, सवाब कमा रही थी। मुस्कुरा कर कहते हुए इसने हिसाब चुकाया था। इसके बदला चुकाने पर वो हौले से मुस्कुराया। वही दिल को मोह लेने वाली यकसिमती मुस्कुराहट। इतनी लंबी दुआ क्या मांग रहे थे अल्लाह से? पूछा तो उसने सरसरी तौर पर था। मेहदस का जवाब अब एक पल को इसका दिल लर्जा गया। मग़फ़िरत।
یک लफ्ज़ी जवाब देते हुए इसकी आंखें जल उठी थीं। हुरब के लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। ऐसे कौन से गुनाह कबीरा कर दिए थे आपने, जिनके लिए रोज़ाना इतनी लंबी लंबी माफ़िया मांगते हैं आप? जानते बूझते इसने सवाल किया था। ज़रूरी तो नहीं कि माफ़ी कबीरा गुनाहों की ही मांगी जाए, कुछ सगीरा गुनाह भी नाकाबिले माफ़ी होते हैं। फिर जिन गुनाहों के लिए इंसान खुद ही खुद को माफ़ ना कर पाए, ऐसे गुनाह जिनकी बदसुकूनी इंसान को मौत की अजियत से दो चार कर दे, फिर क्या किया जाए, तुम ही बताओ। अल्लाह से रुजू किया जाए और बस। तो वही तो कर रहा हूँ, मुस्कुराते हुए वो बेदर्दी से कहा। इसकी बात पर हुरब बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराई। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। अल्लाह ने मुश्किल तो आसान कर दी है, ज़िंदगी अपने हाथ पर धरा इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए मेहदस ने धीमी आवाज़ में कहा, अल्लाह ने मुझे तुमसे तुम्हारे पाकीज़ा वजूद से नवाज कर मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके तहय्युर ज़दा बादामी आँखों में अपना अक्स देखते हुए मेहदस ने कहा, आइंदा मेरी मुश्किल के ख़ात्मे की दुआ करना। एक आखिरी दर, एक आखिरी उम्मीद बची है, वहाँ से माफ़ी मिल जाए तो ये मुश्किल भी ख़त्म हो जाए। वो यासियत ज़दा लहजे में बोलता हकीकतन मैसम और माहिरा बेगम की बात कर रहा था। अलबत्ता वो इसकी सोच की गहराई से नावाकिफ़ रही थी। मैं दुआ करूँगी अल्लाह आपकी मुश्किल ख़त्म कर दे। हुरब के लबों ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में जुम्बिश की थी। ये बात तो आज मुहद्दिस ने वाज़े कर दी थी कि हुरब सुल्तान ने उसकी मुश्किल को सहल कर दिया था, लेकिन इस हकीकत से दोनों ही नावाकिफ़ थे कि मुस्तकबिल करीब में हुरब सुल्तान उसकी मुश्किल, इसकी अजियतों के ख़ात्मे का सबब बनने वाली थी। बिलाशुबा वो इसके लिए अल्लाह का इनाम थी। आप उठें, मैं आपके लिए शेक बनवा कर लाती हूँ। इसके पास से उठते हुए हुरब ने नरमी से कहा, फिर अपनी जान नमाज तय करके एक तरफ रखी। या पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो पलट कर बोली थी। सोफ़े पर बैठता वो इसकी बात पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। नमाज से बेहतरीन एक्सरसाइज और क्या हो सकती है, वो तो कर ली। संजीदगी से बोलते हुए इसने इसे लाजवाब किया था। वो इस बात में सर हिलाती कमरे से निकल गई। तुम्हें कैसे बताऊं हूर, इन गुनाहों का इतराफ़ कैसे करूं जिनका इतराफ़ मुझे अल्लाह के सामने भी शर्मिंदगी देता है। कैसे बताऊं कि मैंने एक मासूम का दिल अपने जालिम कदमों तले बुरी तरह कुचला है, इस कदर बदतरीन अंदाज में कि वो मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठी। वो अजियतों के समंदर में डूबता माजी की अमीर गहराइयों में उतर रहा था कि वो एक बार फिर कमरे में दाखिल हुई। ज़ोहरा बीगी तो तबीयत ख़राब है महदस, और ख़ान सामा 7 बजे आएगा। मैं शेक बना रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ किचन में आ जाएं, मैं बोर हो रही हूँ। मासूम समूह बनाकर इसने इसे अपने साथ आने की दावत दी थी, जबकि वो इसकी इस ऑफ़र पर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया। हुरब जान गई थी कि वो तन्हाई पाते डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, इसीलिए फ़ौरन इसे बुलाने आ गई थी। वो खुशनुमा फूल बने इसके सामने खड़ी इसे अपनी जानिब बुला रही थी। अपने जहन से तमाम दूसरे ख्यालात झटकता हौले से मुस्कुराकर इसके साथ ही आ गया। हुरब सुल्तान ने इसे अजियतों के समंदर में डूबने से बचा लिया था। कॉल की तुमने इसे? किरण की तुर्श आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी थी। असीद ने बेचैनी से पहलू बदला। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। मैंने तीसरी बार कॉल की तो इसके शौहर ने रिसीव की थी, मैंने काट दी। असीद ने इसे जवाब दिया। दूसरी जानी वो तब उठी। उफ़, तो मैंने तुम्हें एक अदद लैंड नंबर भी तो फॉरवर्ड किया था, इस पर ट्राई नहीं किया? किरण ने कुछ झुंझला कर पूछा। असीद ने अपने बालों में बेचैनी से हाथ चलाया। अभी तक तो नहीं। बहुत ही कोई नाकारा इंसान हो तुम। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे आज रात तक का वक्त दो प्लीज़, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। असीद ने इसे मुतमईन करने की सही की थी। दूसरी जानी वो एक पल को अपने लब भींच गई। ठीक है, लेकिन अगर रात तक तुम कुछ ना कर पाए तो हुरब को भूल जाना। किरण ने इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। 1 मिनट मोहतरमा, तुम भूल रही हो कि मेरे बगैर तुम अकेली इसके शौहर को कायल नहीं कर सकोगी। असीद ने फ़ौरन अपनी अहमियत जिताई थी। वो बुरी तरह बल खा कर रह गई। बहरहाल तुम रात तक मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ, किरण ने बड़े ज़ब्त से कहा। असीद अपनी पेशानी मसलते हुए से तसल्लियाँ देने लगा। हुरब क्या करूं मैं, तुम्हारा ज़िद्दी लड़की। सिर्फ तुम्हारी ज़िद की वजह से मुझे सब करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बेइज्जती तो मैंने कभी चाही ही नहीं। बेड पर ढहते हुए वो अपने ख्यालों में हुरब से मुखातिब था। रुको तुम ज़रा, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। साथ के पीछे भागती वो हंसते हुए चीखी थी। वो तेज़ी से भागता बाहर लॉन में ही चला आया, जहाँ ज़ोहरा मोमानी और सैयद नूर आलम साहब पहले से ही मौजूद थे। मामी इसको देख लें आप, ये सादी का बच्चा, वो फर बोल रही थी जब वहाँ महदस की मौजूदगी ने हुरब को ज़ुबान के साथ साथ दौड़ते कदमों को भी ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया। फूली हुई सांसों समेत अपना बेतरतीब दुपट्टा ठीक करने लगी, जबकि इसे अपने पीछे भगा कर साद अब पेट पर हाथ रखे हंस रहा था। सलाम महदस भाई।
साद ने हंसी रोककर झट से इसे सलाम झाड़ा, जिसका मेहदस ने सर के इशारे से जवाब दिया था। आप कब आए? वो फ़ौरन संजीदा हुई थी, शायद अपनी खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है कि 29-30 बरस तो हो ही चुके होंगे। क्यों मेहदस भाई? अपने चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी तारी करते हुए साद ने इसे जवाब दिया था। एक पल को तो वो समझ ही ना सकी। जब समझ आई तो इसने तीखे चतौना से इसको घूरा। नूर आलम साहब भी हंसे, जबकि ज़ोहरा मोमानी ने तंबीही अंदाज में इसे टोका था। अब क्या किया इसने? साद को घूरी से नवाजते हुए ज़ोहरा मोमानी ने होरब से पूछा, करना क्या है? वही चाय का शैदाई है बदतमीज़। मैं ज़ोहरा बी के साथ शेल्फ समेट रही थी, इतने में इसने मेरी चाय का मग भी खाली कर दिया। तो इसमें क्या मुश्किल है, यहाँ से और बना लो। मेहदस ने टेबल पर रखे लवाजमात की तरफ इशारा करके नरमी से कहा। होरब ने झट नफ़ी में सर हिलाया। इसमें चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, हर बार एक जितनी चीनी नहीं डाली जाती मुझसे। मेहदस के लब मुस्कुरा कर सिमट गए। उसने अपने हाथ में पकड़ा कप इसकी जानिब बढ़ाया। ये पी लो, इसमें चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका अंदाज संजीदगी लिए हुए था। साद ने इन दोनों को देखते हुए अपना सर खुजाया और आंखें मटका कर होरब को कप थामने का इशारा किया। वो झिझक गई। ज़ोहरा मोमानी मुस्कुरा दी। पी लो बेटा, भाई में मोहब्बत बढ़ती है। वो नर्म लहजे में गोया हुई तो इनकी बात पर मेहदस की सुरमई आंखें जगमग जगमग करने लगी, जबकि होरब की निगाहें झुकती चली जा रही थी। चारों नाचार मेहदस को चेयर से उठकर इस तक आना पड़ा। पी लो ना। वो इसके सामने आकर ठहरा था। लबों पर दबी दबी से मुस्कुराहट थी। वैसे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है आप में, वो दबा दबा सा बोली। साथ के कान इन्हीं दोनों की जानी मुतवज्जा थे। अरे होरा पी, मियाँ बीवी में कैसी शर्म? और सियाने कहते हैं जिसने की शर्म उसके फोटे करम। उन दोनों के करीब आते हुए इसने बावाज़े बुलंद चुटकला छोड़ा था, जिस पर मेहदस ने बेसाख्ता कहकहा लगाया था। होरब ने बर वक्त मेहदस के हाथ से कप झपटने वाले अंदाज में थाम लिया कि साद मज़ीद लाफजनीना शुरू करते। देखा भाई, करम फोड़ने के डर से आप इन्हें शर्म का घड़ा ही फोड़ दिया। लो पी ली। अपने सुर्ख पड़ते चेहरे को झुकाते हुए होरब ने कुछ तपे तपे से लहजे में कहा। मेहदस ने नरम गर्म निगाहों से इसका सादगी शर्म के मिले जुले खूबसूरत इम्तजाज से दमकता चेहरा देखा। वैसे तो शर्मा रही थी, अब स्पीड देखें ज़रा। साद की ज़ुबान शायद आज रुकने को तैयार नहीं थी। बस करो यार, मेरी बीवी तंग हो रही है। साद के सर पर चपत लगाते हुए मेहदस ने मसनूई संजीदगी से कहा, मुझसे ज़्यादा तो शायद आप तंग कर रहे हैं इन्हें। दू बदू बोला तो होरब ने दिल ही दिल में ख़ुद को कोसा। मैं यहाँ मौजूद हूँ भाई, साद ने ज़ुबान निकालते भरपूर शराफत से कहा तो होरब ने अपनी हंसी छुपाने को चेहरे का रुख ही मोड़ लिया। नूर आलम साहब और ज़ोहरा मोमानी अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मेहदस ने इस बार साद को हकीकतन घूरा था। ऐसे मत देखें, प्यार हो जाएगा। वो मज़ीद फैला। अंदाज़ ऐसा था कि मेहदस को भी हंसना पड़ा। साद का चेहरा मेहदस की नरमी पर खिल उठा था। जिससे होना था इससे हो चुका है। ओहो, साद ने भवों को जुम्बिश दी। और इसका सबूत क्या है? तुम क्या सबूत लेना चाहोगे? मेहदस भी शायद आज मूड में था, सो खुश दिली से पूछ बैठा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि आपको 30 सेकंड में होरब आपी को पकड़ कर दिखाना है। साद ने इसके सामने बड़ा आसान सा टास्क रखा था। बस। मेहदस हंसा था। होरब मुँह खोले हैरत से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। जी बस, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपको अपनी आँखों पर मेरा ही रुमाल बांधना है। अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए इसने इत्मीनान से कहा, जबकि इसके इस बचगाना टास्क पर वह हंसा। यार ये बचपना मेरे खालिस प्यार की तौहीन है, मेहदस ने हंसते हुए कहा, जबकि कुछ सोचकर होरब मुस्कुराती। आई थिंक हमें एक गेम खेलनी चाहिए, मज़ा आएगा। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मेहदस का जवाब होरब की तवक्को के ऐन मुताबिक था। चलें आपी, आप 10 कदम दूर चली जाएं। रुमाल को मेहदस की आंखों पर बांधते हुए साद ने पुल जोश सा होकर कहा। होरब जल्दी से भागती इन दोनों से दूर हो गई। यार साद, मेहदस ने हौले से इसे मुखातिब किया। जी भाई, रुमाल बांधते हुए मसरूफ़ सा बोला। थोड़ी चीटिंग करवा दो। इसका लहजा मुस्काता हुआ था। साद धीरे से हंसा। मुझे क्या मिलेगा? फ़ौरन मतलब परस्ती पर उतर आया। iPhone 6 या PC में ट्रीट, जो तुम चाहो। मेहदस ने बेहतरीन ऑफ़र दी थी। साद की बाछें खिल उठी। ऑफ कोर्स iPhone 6 भाई। इसकी आवाज़ सरगोशियाना थी। साथ ही इसने रुमाल बांध दिया इस अंदाज में कि मेहदस की दाएं आंख रुमाल की झिरी से चंद कदमों के फासले पर होरब को देख पा रही थी। तो मैं ट्रीट भी दूंगा, मेहदस ने प्यार से कहा तो बाकायदा हुर्रा का नारा लगाता उछला। वो अपनी मखसूस धीमी चाल से छोटे छोटे कदम उठाता होर की जानिब बढ़ने लगा। कदमों में नामहसूस सी लड़खड़ाहट थी। वो मुस्काती नज़रों से इसकी जानिब देखती दबे कदमों इसके करीब आई थी।
साद ने काउंट डाउन शुरू कर दी। मेहदस जो इसे करीब आते देख पा रहा था, इसे थामने को कदरे बड़ा कदम उठाता इसके करीब हुआ, लेकिन वो बर वक्त दाएं जानिब हो गई। इसकी हंसी की खनक मेहदस की समातों में रस खोल गई। खला में हाथ हिलाने की अदाकारी करता बाएं जानिब घूमा। वो जानता था कि होरब इसके पीछे है, लेकिन थोड़ी दूर है। वो जैसी करीब हुई, मेहदस ने पलट कर इसे पकड़ना चाहा। वो जल्दी से पीछे हुई। इसे थामने की कोशिश में एक बार फिर कदरे लंबा डग भरता इसके करीब हुआ था। 19, 18, 7 की गिनती जारी थी। होरब मुस्कुराती नज़रों से इसके पैरों की हरकत देख रही थी, जो इसे थामने की बेचैनी में डगमगाए बगैर ज़मीन पर गिरफ्त रख पा रहे थे। मैं 10-15 सेकंड रह गए हैं, वो इसके करीबी धीमे सुरों में बोली थी। इसके गुलाबी लबों पर खेलती चमकदार मुस्कुराहट मेहदस की दाएं आंख से मख्फी नहीं थी। वो अपना निचला लब दांतों में दबाता बेताबाना इसकी जानिब लपका। वो फिर से दूर हुई। मेहदस के कदमों ने तेज़ हरकत की थी। इस बार वो बिना रुके इसे थामने को इसकी सिमत बढ़ा था। गो चाल मुतवाज़न नहीं थी, लेकिन कदमों में मजबूती थी। इसे सीधा अपनी जानिब आता देकर वो चौंकी। 4, 3, 2। अगले ही पल मेहदस ने इसे जा लिया। ये चीटिंग है। इसकी आंखों से रुमाल हटाती वो चीखी। मेहदस खुलकर मुस्कुराया था। आंखों में शौक का एक जहान आबाद किए दीवाना वार इसका खिला खिला चेहरा देखने लगा। मैं तुम्हें जीत चुका हूँ, अब हर चीटिंग जायज़ है। वो नर्म लहजे में फ़खरिया बोला था। होरब की बादामी आंखों में नमी चमक रही थी। और मैं भी जीत चुकी हूँ, वो भवें उचकाती एतमाद से बोली। आंखों की नमी साथ के करीब आने से पहले ही पोरों पर चुन ली। आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो गई आज, बाकी की कल करवाऊँगी, वो चहकते हुए बोली। तो इसकी बात का मतलब समझता वो चौंक उठा, फिर इसकी जहानत पर मुस्कुरा दिया। 7 दिन दोनों के करीब आ गया। आप दोनों ने चीटिंग की है। इसके करीब आते ही होरब ने शिकवा किया। कसम से आपी, मैंने नहीं की। ये तो मेहदस भाई ने मेरा ईमान इस बुरी तरह से ख़राब किया कि मैं मासूम इनकी हेल्प करने पर मजबूर हो गया। तौबा, ऐसे ऐसे ऑफ़र्स कि नाजुक दिल के अफराद तो मौका पर ही पिघल जाएंगे। मेरा दिल तो है ही मोम का, सो मैं भी पिघल गया। आखिर में बतीसी की नुमाइश करवाते हुए वो बड़े आराम से बोला। मेहदस इन दोनों की नोक झोंक के दरमियान होरब का पटर पटर बोलना देख रहा था, इससे पहले कि होरब इसे मज़ीद कोई जवाब देती। एक मुलाजिम भागता हुआ उनके करीब रुका था। मैडम, आपके लिए कॉल आई है। कोई असीद साहब हैं, कहते हैं कि ज़रूरी काम है, आपसे बात करवा दें। वो हाथ बांधे मुअद्दब सा बैठा था। असीद के नाम पर होरब के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ था। दिल की धड़कनें पल भर को सुस्त तरीन हुई थी। इसने चोर निगाहों से मेहदस की जानिब देखा, जो सवालिया नज़रों से उसी की जानिब देख रहा था। मैं किसी असीद को नहीं जानती, आप इन्हें मना कर दीजिए। होरब का दिल हर शय से उचाट हो चुका था। वो परेशान से होकर जोहरा मोमानी के पास ही चली आई। समाते साथ के लफ्ज़ों को सुन रही थी, लेकिन मेहदस की पुरसोच निगाहों ने होरब का पीछा किया था। छोटी छोटी तंगो तारीख गलियों में संभल संभल कर चलती वो इसका मजबूत बाजू थामे हुए थी। छोटे बेपर्दा टूट फूट का शिकार घरों में जर्द और नीली रोशनियों के बाइस उजाले थे। सब इसकी जानिब देख रहे थे, जो मुकम्मल इस्लामी लिबास ज़ेबतन किए चेहरे को शाल से छुपाई मैसम के संग चल रही थी। वो लोग गैर अफराद को अपने मोहल्ले में घुसने की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन ये मैसम और हुमैरी के पीछे आते 6 से 7 पुलिस ऑफिसर्स के मौजूदगी का कमाल था कि वो लोग हवन्नक बने उनकी वहाँ मौजूदगी बर्दाश्त कर रहे थे। इनमें से कोई भी वाकिफ़ नहीं था कि बावकार से वो लड़की 4.5 साल पहले वहीं की रिहायशी थी। हुमैरी की झुकी निगाहों में उठने की सकत ना थी। जैसे जैसे इसका घर तक का फासला तय हो रहा था, इसके कदमों की लड़खड़ाहट में इजाफा हो रहा था। 2 से 3 मिनट की मुसाफत के बाद वो ऐन अपने घर के सामने खड़ी थी। टूटे हुए दरवाजे से छोटे से कच्चे सहन का मंजर वाज़ेह था। दरवाजे पर ही इसके दोनों चचा और इनके जवान होते बेटे खड़े थे। झलंगा सी चारपाई पर एक फटी पुरानी चादर से इसकी माँ का बेजान वजूद ढका पड़ा था। चारपाई के सिरहाने से सर टिकाए बैठी मिधा निढाल सी थी। छोटा ईसा एक तरफ बैठा मुंह बसोर रहा था। अलावा जी मोहल्ले की चंद एक ख़वातीन, इसकी 2 चचियाँ भी वहाँ मौजूद थी। हुमैरी की सूजन ज़दा आंखें एक बार फिर से बहने लगीं, इस शिद्दत से कि मिधा ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। हुमैरी ने बहुत आहिस्तगी से अपने चेहरे से शाल का पल्लू हटाया था। मिधा ने आंखें सुकेट कर इसकी जानिब देखा। अगले ही पल इसे पहचानते हुए वो इसकी जानिब लपकी थी। इतने अरसे बाद हुमैरी को वहाँ देखकर औरतों में चहम गोइयाँ शुरू हो गईं, जबकि वो दोनों बहनें गिरद से अनजान एक दूसरे के गले लगी इस गम पर रो रही थी। 13 साला ईसा भी इसे पहचान चुका था, सो फ़ौरन इसकी तरफ आया था। बाजी, मेरी प्यारी बाजी,
वो रोते हुए इससे लिपट गया। अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए हुमैरी ने इसके सर पर हाथ रख दिया। मैसम घर के बाहर ही खड़ा हो गया। कैसे हुआ ये? मिधा की पूछ थपकते हुए हुमैरी ने पूछा था। पता नहीं, कल रात तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, सुबह नाश्ते के वक्त उठाया तो उठी ही नहीं, बताते हुए वो एक बार फिर रो पड़ी। हुमैरी अपनी माँ की तरफ बढ़ गई। बहुत आहिस्तगी से चारपाई के सिरहाने बैठ गई और इस चेहरे की जानिब देखा जो इसकी माँ का था। कमज़ोर लाग़िर वजूद, बेजान खुली आंखों में रोशनी की कोई रमक नहीं थी। हुमैरी को चारपाई के करीब बैठते हुए देखकर इसका चचा चीखा। मैसम की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। उसने कहा था कि इसके पास इसे बिठाकर इसकी रूह को पलीद ना करो। इसने एक पुलिस ऑफिसर को इशारा किया था। बुजुर्गवार, दीन और कानून की रोह से ये मोहतरमा आपकी इस ईसाई रूह हुमैरी की माँ की बेटी है। एक बेटी को इसकी माँ का आखिरी दीदार करने से ना तो आप रोक सकते हैं, ना ही आपका दीन। पुलिस ऑफिसर ने हुमैरी के चचा को मुखातिब किया था। जाने इसके चचा ने क्या जवाब दिया था, वो बेबहरा रही थी। अम्मा जी, अब बताओ। हुमैरी ने बहुत धीमी आवाज़ में अपने कान में सरगोशी सी सुनी थी। वो जानती थी मुकाबिल वजूद बेजान है, लेकिन इस्लाम की रोह से वो वजूद इस पल हिसाब के मरहले से गुजर रहा था। हुमैरी ने बहुत धीमी आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। वहाँ मौजूद ख़वातीन में से एक के कान में कलमे के अल्फाज पड़ गए थे। खुदा माफ़ करियो, खुदा माफ़ करियो। रूह की मट्टी पलीत कर दी इस कुड़ी ने। वो कानों को हाथ लगाती दुहाई देने वाले अंदाज में तौबा करने लगी। मिधा ने तंबीही अंदाज में हुमैरी को देखा। ये ज़रूरी था मिधा, इसके सिसकते लबों ने जुम्बिश की। इधरो चली जा हुमैरी, इसकी एक चची ने इसे धक्का देते हुए कहा। मैसम जल्दी से इसे थाम गया। हुमैरी ने मुस्कुराती नम आँखों से अपनी माँ का चेहरा देखा। अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करे अम्मा, आमीन। हौले से कहते हुए इसने एक अलविदाई नज़र माँ के चेहरे पर डाली, जिस पर इस पल सुकून सा था, यूँ जैसे इस दुआ और कलमे के ज़ेरे असर इसकी रूह करार पा गई हो। चलो जोहा,